ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸਨ ਸਿਟੀ ਅਮਿਊਜ਼ਮੈਂਟ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਾਮ ਆਸ਼ਰਮ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਐਸਕॉट ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਰਾਮਬਲੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਆਏ ਆ ਇਕੱਠੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਆਸ਼ਰਮ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7:57 ਤੇ। ਬੱਚਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਕਲਾਸ ਦੇ ਉਹਨੇ 2-3 ਪੀਰੀਅਡ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ 10:22 ਤੇ ਸਕੂਲੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਆਏ ਸਕੂਲ ਭੱਜੇ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅਪੈਕਸ ਹਸਪੀਟਲ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਵੱਡਾ ਲੜਕਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਅਪੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਪੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਅਪੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਸਕੌਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਕੀ ਖਾਦਾ? ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕਿ ਕੁਝ ਇਹਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਧੀ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਿਆ ਆ, ਸਕੂਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਪਾ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਰੰਗ ਦੀ ਖਾਕੀ ਕਲਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਖਾ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਣ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਸੀ। ਗੋਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਸਲਫਾਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ, ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਅਜੇ ਕੁਝ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਸਕੂਲ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ। ਸਕੂਲੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਲਾ ਕੇ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਟਾਫ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ 2 ਟੀਚਰ ਆਈਆਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕੱਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਲੈ ਜਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੱਲ ਤੱਕ? ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਸਕੂਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 8:30 ਵਜੇ ਫੋਨ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫੋਨ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। नाम नीतू शर्मा, मैं श्री राम आश्रम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੀ? सर कल क्लास में ऑल ऑफ सडन बच्चे को वॉमिटिंग्स आई नियर अबाउट कोई 10 बजे के आसपास, क्योंकि 9:40 पे 35-40 के आसपास हमारा सेकंड पीरियड जो ओवर हुआ वो कंप्यूटर लैब का था। मैं इसलिए टाइम के लिए इतनी कंफर्म हूँ, कंप्यूटर लैब ग्राउंड फ्लोर पे है। 9:35 पे पीरियड ओवर हुआ। उसके बाद बच्चे टॉप फ्लोर पे गए, क्योंकि जो 7th क्लास है वो 6th क्लास जो है वो सेकेंड फ्लोर पे है। जब बच्चे सेकेंड फ्लोर पे गए, जाते हुए 5-7 मिनट लग जाते हैं। उसके बाद टीचर, इंग्लिश की टीचर क्लास में आई, वो पढ़ा रही थी। 10 मिनट के बाद एक बच्चे को वॉमिटिंग्स आनी शुरू हुई। वो फटाफट वॉशरूम में ले गए, वहाँ बच्चे को पॉटी भी आई और बच्चा वहाँ अनकॉन्शियस हो गया। हमारे यहाँ प्रॉपर नर्स है ट्रेंड, उसके पास फटाफट टॉप फ्लोर से नीचे लाते हुए 2-3 मिनट लगते हैं। इतने जवान बच्चे को लेके आए, नीचे आए, उसने बीपी चेक किया, कहते हैं जी बीपी बड़ा कम है, हम इसको कुछ
कुछ दे नहीं सकते क्योंकि बच्चा अनकॉन्शियस है। बच्चे को थोड़ी सी होश आई, लेटा हुआ था, उसको पूछा तूने कुछ खाया, कहता मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया। उस नाते हम कुछ बच्चे को दे नहीं सकते थे। हमने इमीडिएटली सर पेरेंट्स को फ़ोन कर दिया। 10 मतलब ये सोचिए मैं आपको कि 10 बजे के आसपास ये बात हुई है, सारा चेकअप हुआ बच्चे का, पेरेंट्स को फ़ोन किया, 10-20 के आसपास पेरेंट्स आए और आगे बच्चे को ले गए। बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता बच्चा 6th क्लास में पढ़ता है सर। है? कल की बात है। हाँ जी, ये कल सुबह की बात है। पेरेंट्स बोले कि बच्चे की एज सर, उसका हमने अभी डेट ऑफ बर्थ चेक किया है 2011 10 अक्टूबर 1 अक्टूबर 2011 उसकी डेट ऑफ बर्थ है। बच्चे ने कुछ स्कूल से खाया है। सर स्कूल में कोई रिसेस नहीं हुई थी, कुछ नहीं हुआ था, अभी क्लास में पीरियड चल रहा था। उसके बाद सर रिसेस के बाद हमारी एक टीचर ICSE के पेपर चेक करने के लिए गई हुई है, तो वो उसका सब्जेक्ट मैथ है, उसकी जगह पे क्लास मैं ले रही हूँ पिछले 4 दिन से 7th B में। मैं 11:20 पे रिसेस ओवर हुई, मैं अपनी क्लास लेने चली गई। 5-7 मिनट में क्लास में काम करा रही थी तो मुझे नीचे से मेरा ऑफिस स्टाफ आया, कहते मैम नीचे पेरेंट्स आए हैं, जो बच्चा बीमार है, तो कहते डेस्क चेक करना है। मैं क्या डेस्क में चेक करना है? बच्चे में कहते हैं उसमें देखो कोई चीज़ तो नहीं पड़ी हुई, देखना है हमें। उसी फ्लोर पे मेरी क्लास थी तो मैं क्या बेटा देख लेते हैं, जाके देखा पेन का कैप था, वो बच्चे राजा वजीर चोर सिपाही कुछ खेलते होंगे, वो एक स्लिप पड़ी थी और टूटा हुआ नीचे पेन पड़ा था। मैंने कहा बेटा ये सामान है सारा, मैंने वहीं पे सामान रखा, मैं अपनी क्लास में चली गई, मुझे कुछ नहीं पता था उस समय क्या हुआ। फिर दोबारा जैसे 5 मिनट के बाद एक मेरा ऑफिस का लड़का है, वो भागा आया, कहता है मैम पेरेंट्स कह रहे हैं बच्चे ने सल्फास कही। सर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैं कहा ये कैसे हो गया? मैंने वहीं पर अपना मोबाइल और पेन भी वहीं पर छोड़ा, मैं फटाफट नीचे भागी आई। उन्होंने पेरेंट्स आए, पेरेंट्स ने कहा कि ऐसे मैम खाई। मैं कहा बेटा स्कूल में पॉसिबिलिटी नहीं है कि सल्फास आए और हम लोग इतने पर्टिकुलर हैं। तो कहते हैं हमने क्लास में जाना। मैं कहा आप सारे क्लास में नहीं जा सकते, दूसरे बच्चे भी वो डर जाएंगे क्योंकि हमारे पास देखिए जिम्मेवारी सारे बच्चों की है। तो मैं क्लास में गई, मैंने क्लास में आके बच्चों को हेलो हाय की। मैंने कहा उनके ताया जी जो साथ थे, मैं क्या उनको ले आओ, क्लास में ले जाते हैं। उनको हम क्लास में ले गई। हमने बच्चों से पूछा कि हमने पूछा अनुराग कहाँ बैठा था? बच्चों ने कहा लास्ट बेंच पे 3rd रो में बैठा हुआ था। उसके बाद उनसे पूछा पहले भी वो लास्ट बेंच पे ही बैठता था। सर एक्चुअली स्कूल शुरू हुए अभी 5-6 दिन ही हुए हैं समर ब्रेक के बाद, तो इसके नया सेशन शुरू हुए 5-6 दिन हुए हैं। बच्चे लास्ट बेंच पे बैठा हुआ था, उसके आसपास 2 बच्चे बैठे, उसके ताया जी भी साथ थे। तो बच्चों ने कहा हम बैठे हुए थे। उन्होंने कहा उसके फ्रेंड्स कौन है? कहते हैं हम हैं। तो हमने कहा क्या? उन्होंने ताया जी की प्रेजेंस में बच्चों ने बोला, कहते क्या हुआ? तो कहते जी उसको ना सुबह थोड़ा लेट आया। तो वो कहते नहीं वो तो टाइम पे आता है। कहते बच्चों ने कहा अटेंडेंस के बाद आया। कहानी आप बना रहे हैं सर मैंने जो बच्चों ने बयान किया, मैम रिस्पांसिबिलिटी किसकी बनती है? आपका क्या फर्ज बनता था? बच्चे आपके भरोसे पर परिवार बेचता है। बिल्कुल सर हमारे भरोसे पे बैठता है। सर हमारी रिस्पांसिबिलिटी जो रूल बनता है, हमने बच्चे को नर्स को दिखाया, चेकअप कराया। देखिए जब बच्चा कैमरे लगे हैं आपके? सर क्लासेस में कैमरे नहीं होते कब सर, इस तरह तो वॉशरूम में भी आप कहेंगे कैमरे चाहिए। नहीं सर बच्चा क्लासरूम्स में सब बातें बनाने वाली बातें तो आप भी बना रहे हैं। क्लासरूम में कॉरिडोर में कैमरा। सर देखिए किसी का बच्चा नहीं, वो हमारा बच्चा है, स्कूल का बच्चा है। जैसे सर अब कैसे खा ली, उनका भी तो बच्चा है जिनका खून है, उसने भी खाई है। अब हमें नहीं पता स्कूल में खाई बच्चे। सर कोई घर में कोई वजह रही होगी जो कोई वजह नहीं है मैम, कोई वजह नहीं है। सर देखिए मैं अभी भी आपके सामने यही कहूंगी, बच्चे परमात्मा करे बच्चा ठीक हो जाए। जैसे ही मुझे पता लगा सल्फास सर जब का बच्चा दाखिल है, हमारा स्टाफ कल दोपहर को भी गया था, आज सुबह भी गया, क्योंकि सर मैं दिन में कम से कम 10 बार उनको फ़ोन पे हम बात करें, ताया जी को फ़ोन करें, हमारे पास कॉल रिकॉर्ड्स हैं, क्योंकि बच्चा ICU में, हमें तो मिलने की परमिशन है नहीं है, हम जान सकते हैं, हम तो सिर्फ फैमिली से पूछें। आज सुबह भी उनको फ़ोन किया, 3 बार टीचर गए हैं उनके वहाँ, जो ये कह रहे हैं पर्सन है उनसे मिल के आए हैं, वहाँ पर MO भी था, उनसे भी मिले हैं सारे। सर हमने जैसे ही मुझे पता लगा बच्चे ने सल्फास कर, उन्होंने सुबह डॉक्टर ने ये कहा कि सुबह पहले तो BP उसका 88 हुआ था, बाद में 70-60 फिर डाउन आ गया। सोडियम और जो है फॉस्फेट वो थोड़ा बड़ा, फॉस्फोरस बड़ा हुआ है, यूरिन बड़ा कम पास हो रहा है। मैम ये चलती क्लास में खाई उसने? सर हमें कुछ नहीं पता सर, मैम ये हमें कुछ नहीं पता। आप अगर इतना पता होता तो मेरे को आप देखिए सर, जैसे क्लास ही में हमें बच्चे ने एक चीज खाता है, वो हम भी इसी स्कूल में सर, पढ़े देखिए- हैं। क्लास में बच्चे कोई चीज खाता है तो मैडम को पता होता है, वो सर पढ़ा रही होती है, क्या टीचर खा क्लास रही में होते काम, हैं। अच्छा टीचर देखिए रीड कर रही है, बुक से काम करा रही है, अगर बच्चा हाथ में कोई पकड़ के मुंह सा कुछ खाने का कोई तरीका ये नहीं होता रूमर ना। किसने फैलाया है कि उसने स्टिंग के साथ पी है? स्ट्रिंग कौन किसके साथ पी? अभी मैं आपको कॉल करवाता हूँ। सर आप उस बेटा मेरी बात सुनो, लोग बातें करते रहेंगे, हमारी तरफ से मैंने ऐसा कुछ मुझे तो सल्फास का भी नहीं पता, आपने आके मुझे बोला, मुझे तो वो भी नहीं पता था। उसके इमीडिएटली अब आप क्या कर रहे हैं उसके लिए? देखिए सर हम तो प्रेयर्स कर, जैसे ही कल मुझे पता लगा उसके बाद भी हमने पूरे स्कूल में, मैंने खुद माइक पे महामृत्युंजय का पाठ किया 7 बार, सारे बच्चों का घर जा करना, क्योंकि
हम ये मानते हैं कि पाठ में बड़ी ताकत है, बच्चा ठीक हो सकता है। मैंने रात को भी मोबाइल में यही सबको मैसेज डाला टीचर्स को। कितने बच्चे इस वक्त आप सर हमारे पास 750 के 750। अब जो बाकी परिवार है वो क्या सोचेंगे भी एक बच्चा ऐसे हो सकता है, फिर ऐसे कई बार कुछ भी हो जाए तो आप सर बोलेंगे देखिए, मैं हाथ जोड़ के आपसे ये कहूँगी, परमात्मा ना करे बच्चे को कुछ हो। हमारे परिवार में भी मेंबर्स हैं, एक्सीडेंट तो कहीं भी हो सकता है। सवाल है सर इतनी कंडीशन खराब हुई आपने एम्बुलेंस भी नहीं मंगवाई। सर हमें एक्चुअली उस टाइम बच्चे ने कहा कि मैंने कुछ खाया नहीं, वॉमिटिंग आई बच्चे को। हम तो जनरली यही लेते हैं ना कि बच्चे ने खाया नहीं, हमें थोड़ा ना पता था क्या हुआ। हमने तो उसी वक्त पेरेंट्स को इमीडिएटली कॉल कर लिया, क्योंकि मैंने अपनी नर्स को पूछा कि आपने कुछ खिलाया। वो कहते नहीं, हम खिला नहीं सकते क्योंकि बच्चा अनकॉन्शियस है। ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸੋ। ਸਕੂਲ ਕਿਹੜਾ ਸਕੂਲ? ਰਾਮ ਆਸ਼ਰਮ ਸਕੂਲ। ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਦੱਸੋ। ਕਿਸੇ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਪੋਰਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਵਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਆ। ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਖਾਧਾ ਕੁਛ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਾਧਾ ਕੁਛ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਕਾਂਡੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵੱਲ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕੈਮਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਡਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਕੰਟੀਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਟੀਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਕਰਨ ਡਏ ਜੀ, ਕਰਨ ਡਏ ਜੀ, ਕਰਨ ਡਏ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਡਏ ਜੀ, ਕਰਨ ਡਏ ਮੁੱਢਲੀ ਬਸ ਕਰਨ ਡਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਅਜੇ ਕਰਨ ਡਏ ਆ, ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਲੀਅਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਥਾਣੇ ਦੇ? ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੱਲ੍ਹ ਗਏ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਅਨਫਿਟ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਕਲਾਸ ਚ ਪੜਦਾ ਸੀ ਬੱਚਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਬੱਚਾ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ? ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ 11-12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ।